चैप्टर 2 सोलर सिस्टम एंड अर्थ सौरमंडल और पृथ्वी. Solar system. In a dark night, when we lay down to the sky, how nice the scene is. Small and large countless stars shining brightly in the sky. It looks as if the stars on the blue sheet were inclined. When the sun rises, stars hide. This group of stars in the sky is called the constellation. Some of these are big stars, which clearly seen from the telescope. These are called satellite or planets. Planets, satellite, constellation, etc. stars in the sky are called solar system only. Such solar system are also innumerable. All these are called universe. The empty space between the stars, planets, comets is called space. The visible blue sky is actually empty space. सोलर सिस्टम मतलब सौर मंडल. किसी अंधेरी रात में जब हम आसमान की तरफ मुँह करके लेटते हैं तो कितना अच्छा नज़ारा लगता है. आसमान में छोटे बड़े कई सारे तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं. ऐसा लगता है जैसे नीली सी चादर पर तारे जड़े हुए हों. सूरज निकलता है तो तारे छिप जाते हैं. आकाश में दिखने वाले तारों के इस झुंड को तारामंडल कहते हैं. इनमें से कुछ बड़े तारे होते हैं जिनको दूरबीन से देखने पर वे साफ दिखाई देते हैं. इनको उपग्रह या ग्रह कहते हैं. आसमान में मौजूद ग्रह, उपग्रह, तारामंडल, इन सब चीज़ों को ही सौरमंडल कहते हैं. ऐसे सौरमंडल भी कई सारे हैं. इन सब को मिलाकर ब्रह्मांड बनता है. तारों, ग्रहों, पिंडों के बीच में जो खाली जगह है उसे अंतरिक्ष कहते हैं. ऊपर दिखाई देने वाला नीला आसमान असल में कुछ भी नहीं है, खाली जगह है. सन. The sun is a celestial body. Its diameter is approximately 1.4 million kilometers. Its distance from our Earth is about 15 million kilometers. It is stable in space but it rotates on its axis. It looks like a fireball. Its light reaches on Earth in 8 minutes. Due to many burning gases, energy, heat and light emanates from it. From this, on the Earth power, energy, light and life are attained. All planets receive light and energy from the sun itself. सन मतलब सूरज. हमें दिखाई देने वाला सूरज एक गोल पिंड है. इसका व्यास इसका लगभग 14 लाख किलोमीटर है. हमारी धरती से इसकी दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है. ये अंतरिक्ष में है लेकिन अपनी ही दूरी पर घूमता रहता है. ये आग के गोले के जैसे दिखाई देता है. इसकी रोशनी हमारी ज़मीन तक 8 मिनट में पहुंचती है. बहुत सी जलने वाली गैसों की वजह से ही इसमें गर्मी और रोशनी निकलती है. इसी से धरती पर शक्ति, ऊर्जा, रोशनी व ज़िंदगी मिलती है. सभी ग्रह सूरज से ही रोशनी व ऊर्जा प्राप्त करते हैं. प्लैनेट्स. The circular bodies that move around the sun are called planets. There are 8 planets in the solar system. Mercury is the shortest distance from the sun and Pluto is the widest distance. Here are the names of the distance from the order of Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn मतलब Arun, Varun and Pluto. The distance of Mercury from sun is approximately 6 million kilometers, while Pluto's distance is 6 billion kilometers. Mercury is the smallest and Jupiter is the largest planet. According to the new concept, Pluto has been removed from the planetary category. Now there are some 8 recognized planets in the solar system. Planets मतलब ग्रह. सूरज के चारों तरफ घूमने वाले गोलाकार पिंडों को ग्रह कहते हैं, जो गोल गोल उसके आसपास चक्कर लगाते रहते हैं. सौर मंडल में 8 ग्रह हैं. सूरज से सबसे कम दूरी पर बुध और सबसे ज़्यादा दूरी पर कुबेर यानी कि प्लूटो है. दूरी को इसी हिसाब से अगर लगाया जाए तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और कुबेर इस पंक्ति में आते हैं. बुध की सूरज से दूरी लगभग 6 करोड़ किलोमीटर है, जबकि प्लूटो की दूरी 6 अरब किलोमीटर है. बुध सबसे छोटा और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है. नए हिसाब से प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है. अब सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं. Satellite. All the planets revolve around the sun. Similarly,
These planets have separate satellite which revolve around it. It's our planets. The same satellite of our Earth is Moon. It completes the Earth in a 29 1/2 days. This is called a month. The moon also receives light from the sun. The same light reflects on our Earth as a moonlight. Due to the orbiting of the Earth and the moon, day and night seasons, lunar eclipse and solar eclipse occur. सैटेलाइट मतलब उपग्रह। सभी ग्रह सूरज के चारों तरफ घूमते हैं। इसी वजह से इन ग्रहों के अलग अलग उपग्रह भी हैं जो अपने अपने ग्रह के चारों तरफ घूमते हैं। हमारी धरती का एक ही उपग्रह है, चंद्रमा। ये हमारी पृथ्वी के चक्कर लगाता है। 29 दिन में पूरा 29 दिन में पूरा करता है ये एक चक्कर। जब ये एक चक्कर पूरा कर लेता है तब क्या होता है, एक महीना। चांद भी सूरज से ही रोशनी लेता है। वही प्रकाश बदलकर हमारे पृथ्वी पर चांदनी के रूप में आता है। पृथ्वी व चंद्रमा की परिक्रमा के कारण से ही दिन रात, मास ऋतु, चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण होते हैं। अर्थ। Our Earth is the main planet among the planets revolving around the sun. Its rotation revolving around the sun. 365 1/4 days are completed. Alongside the Earth revolves around the sun. The Earth revolves around its axis similar to the Earth. It takes 24 hours. This is called crucis. धरती। हमारी धरती सूरज के चारों तरफ घूमने वाले ग्रहों में से प्रमुख ग्रह है। इसका चक्कर सूरज के चारों तरफ घूमना लगभग 365 1/4 दिन में पूरा होता है। सूरज के चारों तरफ घूमने के साथ साथ पृथ्वी लट्टू के जैसे अपनी एक ही जगह पे घूमती है। इसमें 24 घंटे लगते हैं। इसे परिभ्रमण कहते हैं। The mountains, oceans, rivers, climates, fauna, etc. are very attractive here. When being a short distance from the sun, there is a lot of heat and more distance in some part of the earth. But in some parts it is very cold. There are two parts of land and water on our earth. High, low, lowland. Sandy, higher mountains covered with green fields and rivers filled with holy water. Various types of vegetation make our earth beautiful and attractive. From this earth we obtain material from various types of fruits, flowers, foods and medicine. यहाँ के पर्वत, सागर, नदियाँ, जलवायु, जीव जंतु सभी चीज़ें बहुत आकर्षक हैं। सूरज से कम दूरी होने पर धरती के कुछ हिस्सों में बहुत ज़्यादा गर्मी और कुछ ज़्यादा दूरी होने पर कुछ भागों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। जो जगह सूरज के पास होती है, धरती का जो हिस्सा सूरज के सामने होता है, वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और जो थोड़ी दूरी पर होता है वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। हमारी पृथ्वी पर थल व जल के दो हिस्से हैं। ऊंची नीची मैदानी रेतीली ऊंचे ऊंचे हिम से ढके हुए पर्वत, हरे भरे मैदान और खेत, साफ जल से भरी नदियाँ, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हमारी धरती को सुंदर बनाते हैं। इस धरती से हमें फल फूल, खाद्य पदार्थ, औषधियाँ, ये सारी की सारी चीज़ें मिलती हैं।